need to intrinsically recreate that vein of security and risk protection culture in the day-to-day life of a human being, in the day-to-day life of a family, and the day-to-day life of our corporations and enterprises and states in the country. If we are able to create that, I think that's where we see the future of India, which is a secured India, protected India, insured India. संख्या बढ़े, प्रीमियम घटे. The topic is today that the insurance industry in India, how consumer friendly it is. Our objective of today's program is to empower the citizens to understand the benefits of insurance products made available to the citizens of our country through various schemes of the government. And we are very fortunate to have very, very known people, not only within the policy, but also within the industry, to be with us today and guide us in terms of how we can improve ourselves, in terms of getting our resources efficiently used to cover our risks, especially health, our old age kind of a pension, or looking after our old age needs. And many senior citizens have joined us today. And for the benefit of my panel members, on certain critical issues, we deliberate on. And today we are going to deliberate on the topic of the Aware Consumer magazine, which is got dedicated in the month of July on insurance sector. I would request, and I will take this opportunity to request our chief guest to release this magazine. The pure insurance in terms of covering the risk of life at a young age, covering the risk of health at any age, and covering the risk of old age in terms of pensions. जो लोग बहुत वंचित लोग हैं, deprived हैं, जिन तक कवरेज नहीं पहुंच सकता है, वो कैसे लेंगे कवर? ना उनके पास उस तरह के एविडेंसेस हैं प्रूव करने के लिए कि वो इंश्योरेबल हैं, ना उनके पास बहुत सारी कुछ सुविधाएं हैं. So I think that was the monumental thing that happened. First, by opening the accounts and associating a small insurance value to that, which is Jan Dhan accounts. As we all know, it is over 400 million accounts that India has done. And along with that, the insurance coverage that was provided initially. One after the other, any of the flagship schemes that have come out from the Prime Minister's table has got an element of insurance in that. So now that speaks volume of the way the government is looking at the coverage part of it. जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना. एक आपके एक्सीडेंट होने पर डेथ हो जाती है, उसे कवर करता है, या एक्सीडेंट होने पे बहुत ग्रीवियस इंजरी हो जाती है. The other one is about any particular reason with which suddenly you are not there in the family. बेनिफिशियरी को क्या मिलना चाहिए? 2 लाख रुपए का फ्लैट कवर दिया गया, जिसकी राशि बहुत कम रखी गई. पूरे हर महीने के हिसाब से देखें तो 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, इस तरह की वैल्यूज पे लाया गया. एक्सीडेंट को महीने का 1 रुपए पे लाया गया. सो A, bringing it out, B, bringing it out in a simple manner, C, bringing it out in a manner in which you are absolutely affordable to the last man in the queue as a citizen of India. But क्या इससे हम वो दूरी तय कर पाए हैं जो आज करनी है? शायद अभी वक्त बाकी है. इंश्योरेंस कंपनियों को फंड्स कहाँ से आता है? पैसा इंश्योरेंस का क्लेम्स देने के, ये तो पॉलिसी होल्डर्स से कंट्रीब्यूशंस के रूप में आता है. उसको बोलते हैं, हम कहते हैं प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम. ये इंश्योरेंस प्रीमियम सब वसूल करके एक फंड बना के, और उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन क्लेम्स के लिए खर्च करेंगे, क्लेम्स पे करने के लिए. क्योंकि अगर 100 लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लिए तो उनमें से 4 या 5 लोगों का क्लेम होता है, बाकी सबका कोई क्लेम नहीं होता है. तो अभी वो 4-5 लोगों का नुकसान ये 100 लोग मिलकर उठा रहे हैं. ये 100वां एक कोई नहीं आ रहा है, यही 100 लोग उस खर्च उठाते हैं. और इधर कोई गवर्नमेंट का ग्रांट्स नहीं आते हैं, टैक्स पेयर का मनी नहीं आता है. इट इज सिर्फ अपना ही कंट्रीब्यूशन, हम सब मिलके जो फंड बनाए उसी फंड से हम खर्च करके क्लेम्स जिसका भी नुकसान हुआ उसका भर्ती करने का कोशिश करते हैं. आज के कंज्यूमर फोरम में जो कंज्यूमर की प्रॉब्लम है वो यही प्रॉब्लम है कि LIC इसको प्रॉफिट का बिजनेस मानती है.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इंश्योरेंस लिया एंड आई एम पेइंग द प्रीमियम ऑल्सो, अगर ड्यू टू माई फाइनेंशियल कंडीशन आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू पे द प्रीमियम, तो वो आपका पैसा वापस नहीं करते हैं तो परसेंटेज बहुत लो हो जाती है। तो जो आपका बीमा करवाता है अपनी सेफ्टी के लिए, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इन फ्यूचर, कभी कभी हमें ये प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ती है, जो कंज्यूमर फोरम में मैं लाना चाहूंगी कि इफ वी चेंज द इंश्योरेंस एजेंट, तो कहते हैं कि जो लॉन्ग टाइम डिजीजेस हैं उनके लिए आपको पहले 2 साल में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एम्पावर द सिटीजन, ये खाली ऑफिसेस तक ही कन्फाइन नहीं रहना चाहिए, बाहर के जो हैं दोज हु आर नॉन वर्किंग ऑल्सो, दोज हु आर रिटायर्ड ऑल्सो, सबके लिए ये बेनिफिट जो है होने चाहिए। इतनी चद्दर हमारे प्राइम मिनिस्टर फैला दे, क्योंकि बीपीएल को तो मिल रहा है बेनिफिट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, but main problem is with the middle class. So let me therefore add the third dimension to the two global dimensions of insurance, which is penetration and density. The third dimension is the coverage. और हमारे जैसे मुल्क के लिए coverage is as important, if not more, compared to the penetration and density, which are both rupee denominated or dollar denominated parameters. We are right now looking at कुछ भी हो थोड़ा सा इंश्योरेंस तो मिले, और 2 लाख is a good number. So therefore, let's look at the coverage. कितने इंडियंस पे कुछ चाहे चिन्ह मात्र हो, even if it's a token, इंश्योरेंस है या नहीं। तो इस बात को आपको जान के प्रसन्नता होगी कि हम जन आरोग्य के थ्रू जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, करीब 70 करोड़ 700 मिलियन लोगों को कवर कर पाए बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट रन स्कीम्स ऑफ जन आरोग्य योजना और आयुष्मान, विच इज द वे पॉपुलरली नोन एज। सिमिलरली अगर हम जीवन ज्योति, जीवन सुरक्षा बीमा और अगर जनधन के अकाउंट को एग्रीगेट करें तो हम आज करीब 35-40 करोड़ के आसपास पहुंचते हैं उसमें भी। इंश्योरेंस जो बिजनेस है, इट इज द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। जितना ज्यादा लोग होंगे उसका प्रीमियम घटने का उतना ज्यादा चांसेस रह सकता है। आज हमारे देश में होम ग्रोन इंश्योरेंस कंपनीज आज 58 हो गए हैं। डिजिटल फ्रंट में भी अब काफी कंपनीज आ गए हैं, री इंश्योरेंस काफी आ गए हैं। तो देश में जो इंश्योरेंस का इकोसिस्टम है काफी स्ट्रांग बन गया है। मैं इस मंच में ये अब ऐलान करता हूं कि जो भी ग्रुप्स है, कोई भी ग्रुप है 18 या 60 का, जिसमें 10 मेंबर का भी ग्रुप हो, जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप हो उसमें प्रीमियम थोड़ा कम होता है। तो आइडियली अगर 100 से ज्यादा हो, जो भी चाहेंगे वो खाली अपना लिस्ट एज इतना भेज देंगे हमारे पास, हम उनको तुरंत ग्रुप इंश्योरेंस में ले जाएंगे।